Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about a very important topic, that is pantograph. So we will discuss each and every point regarding pantograph, and you will easily give the answer of any questions regarding to the pantograph. So first of all, this is the pantograph. So what is pantograph? अगर हम before studying the pantograph, first of all we should know कि pantograph होता क्या है, right? So pantograph is nothing, it is simple a graphical record of labor. So it is something a graphical record of paper. एक paper होगा. By watching that paper you simply understand the fetal condition, the maternal condition and the progress of labor. So these three things you will immediately get to know by watching just simple page of paper. So that is all about the pantograph, right? So it is the graphical record of labor, and to monitor the progress of labor and condition of mother and fetus and help in detect abnormal labor. So by watching this paper you get to know about the maternal condition, the fetal condition and the progress of labor. And if anything is mishappening, if anything is abnormal happening, you will act at a proper time, right? So that's why if you detect any abnormal labor early and allow timely intervention is very important. So that is all about the pantograph. So जो हमारा मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ है, इसमें बेसिकली हमने इसको क्या किया, वी हैव डिवाइडेड दिस इन 3 पार्ट्स. सो जो हमारा अपर पार्ट्स है that will tell you about the fetal condition, the middle parts will tell you about the progress of labor and the lower part will tell you about the maternal condition, right? So the top part about the fetal condition, middle part tells you about the progress of labor and the bottom part will tell you about the maternal condition. How? So देखो, सबसे पहले दिस इज द पार्टोग्राफ. इसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स दिस इज द पीस ऑफ पेपर, ग्राफिकल रिकॉर्ड. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पेशेंट, ग्रेविडा, पैरा, हॉस्पिटल नंबर, date of admission, time of admission, whether the membrane has ruptured or not, if it is ruptured, from how many hours it is ruptured. So these are the simple identification that we have to write. Then coming to the fetal condition. So fetal condition में first what we are measuring, that is fetal heart rate. So fetal heart rate, तो देखो इन पार्टोग्राफ जितनी भी चीजें नॉन इन्वेजिव होगी, नॉन इन्वेजिव थिंग्स वी विल मेजर एवरी 30 मिनट्स में, एंड द थिंग्स दैट इज इन्वेजिव, जिसमें हमें कुछ इन्वेजिव चीजें करनी होगी लाइक पर वजाइनल एग्जामिनेशन एंड ऑल, सो वो हम इतना फ्रिक्वेंट मेजर नहीं करेंगे. वी विल मेजर एट लाइक 4 आवर्स पे या फिर एज इंडिकेशन, एज पर इंडिकेशन, ठीक है. सो फीटल हार्ट रेट दैट इज समथिंग कि हम नॉन इन्वेजिव हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना. सो नॉन इन्वेजिवली हम इसको मेजर कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट फीटल हार्ट रेट वी विल मॉनिटर एवरी 30 मिनट. सो ऑन पार्टोग्राफ फीटल हार्ट रेट वी विल मेजर एवरी 30 मिनट पे, एंड हम इसको कैसे डोनेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट. कैसे करेंगे, लेट्स सपोज आपने 8 AM पे एंड दिस जो स्मॉल बॉक्स है ना, ये स्मॉल बॉक्स विल टेल यू अबाउट द 30 मिनट्स का. सो स्मॉल बॉक्स ये 30 मिनट्स का होता है. सो लेट्स सपोज आपने 8 AM पे फीटल हार्ट रेट चेक किया एंड इट इज समवेयर अराउंड 130, ठीक है, बिकॉज यू नो fetal heart rate is 110 to 160 beat per minute. If it is less than 110, it is fetal bradycardia. If it is more than 160, it is fetal tachycardia. So fetal bradycardia is also fetal distress. We'll also tell you about the fetal distress, and fetal tachycardia is also not good. So it should be in between 110 to 160, right? So let's suppose आपने 8 AM पे check किया and it is somewhere around 130. देन आपने 8:30 पे चेक किया, इट इज समवेयर अराउंड 120, ठीक है, 120 आया. फिर आपने 9 AM पे चेक किया, इट इज अराउंड 140. फिर आपने 9:30 पे चेक किया, इट इज समवेयर अराउंड 150. सो यू विल मेजर लाइक दैट, एंड देन आप क्या करोगे, डॉट्स को ऐसे मैच कर दोगे. सो बाय दैट वी आर मेजरिंग द फीटल हार्ट रेट. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज द फीटल हार्ट रेट. सेकेंड हमारा कंपोनेंट है दैट इज amniotic fluid. So it will tell you about the status of the amniotic fluid, whether the amniotic membrane has ruptured or not ruptured. If ruptured, then जो fluid जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है. Again amniotic fluid status भी हम like just by looking the pervaginal कुछ fluid कुछ लीकेज है नहीं है, हम इजिली इसको मेजर कर सकते हैं, इजिली हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट amniotic fluid भी हम एवरी 30 मिनट्स पे करेंगे.
एमनियोटिक फ्लूइड भी एवरी 30 मिनट्स पे करेंगे. सो लेट्स सपोज आपने 8 AM पे एमनियोटिक फ्लूइड देखा एंड आपने देखा कि कुछ भी एमनियोटिक फ्लूइड बाहर नहीं आया है, इट मींस द एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है. सो यू विल राइट आई. लेट्स सपोज 8:30 पे आपने देखा तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया एंड वहां से जो भी फ्लूइड जो लीकेज आ रहा है वो कैसा है, क्लियर है. सो दैट इज द नॉर्मल, है ना. सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है वो क्लियर होता है, क्लियर लाइकर होता है. सो यू विल राइट सी. लेट्स सपोज आपने 9 AM पे किया एंड वहां पे जो फ्लूइड आ रहा है दैट इज ब्लड स्टेन्ड है. सो ब्लड स्टेन विल टेल यू अबाउट की हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, वसा प्रीविया हो सकता है, अब्रप्सी प्लेसेंटा, कुछ भी हो सकता है ना. सो यू विल राइट बी. देन लेट्स सपोज आपने 9 AM पे किया एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे मिकोनियम स्टेन है. सो मिकोनियम स्टेन अगेन विल टेल यू अबाउट द फीटल डिस्ट्रेस, है ना. सो यू विल राइट एम, मिकोनियम स्टेन, है ना. सो दैट इज द अमनियोटिक मेम्ब्रेन, है ना. सो स्टेटस ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड एवरी 30 मिनट पे हम मेजर करते हैं. सो आई मतलब इंटैक्ट, सी मतलब क्लियर और लाइकर, एम मतलब मिकोनियम स्टेन, बी मतलब ब्लड स्टेन एंड ए मतलब कि अब्सेंट लाइकर, दे इज ड्राई. इट मींस की जो अमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो बहुत पहले रप्चर हो रखा था एंड नाउ देयर इज ओलिगोहाइड्रामिनोस, बिल्कुल भी अमनियोटिक फ्लूइड नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फाबेट हम स्टेटस ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड ऑन द पार्टोग्राफ हम डोनेट करते हैं. Coming to the third status, third fetal condition, that is the molding. So you know very well molding क्या होता है. When the fetus is passing through the birth canal, so जो fetal जो skull है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है ना. सो बोन जो है वो टच करेगी या फिर ओवरलैप करेगी इन ऑर्डर कि वो जो बर्थ कनाल है उससे वो पास हो जाए, है ना. सो इन ऑर्डर टू पास फ्रॉम दिस बर्थ कनाल फ्रॉम द पेल्विस, जो फीटल जो स्कल है वो जो बोन है वो एक दूसरे से टच करेगी या ओवरलैप करेगी. सो दैट इज समथिंग द मोल्डिंग. सो मोल्डिंग हमारा लाइक 0, +1, +2, +3 ऐसे ग्रेडिंग होती है. सो इफ देयर इज +1 का मतलब क्या है कि जो फीटल जो स्कल जो बोन है दैट इज टचिंग टू ईच अदर बट वो ओवरलैप नहीं कर रही है, इट मींस इट इज नॉर्मल. सो +1 इज नॉर्मल, दैट इज फिजियोलॉजिकल. बट लेट्स सपोज +2 है. सो +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब है कि बोन ओवरलैप टू ईच अदर but it is easily reducible, so that is +2. +3 क्या है कि both overlap to each other but it is irreducible, so that is +3. So +1 if it is right +1 it means it is normal. If it is +2 or +3 it means कि there is something cephalopelvic डिस्प्रोपोर्शन है, मीन्स कि बेबी का जो हेड है वो लार्ज है, बेबी मैक्रोजोमिया है एंड जो मदर का जो पेल्विस है वो बेबी के हेड के अकॉर्डिंग वो छोटा है ना. सो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है एंड इट इंडिकेट कि सिजेरियन सेक्शन की नीड है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है. सो दैट्स ऑल विल टेल यू बाय वाचिंग जस्ट पार्टोग्राफ. आपको पार्टोग्राफ देखकर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है ना. सो दैट इज रिगार्डिंग द मोल्डिंग. सो इन फीटल कंडीशन हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फीटल हार्ट रेट, हमने देखा अमनियोटिक फ्लूइड स्टेटस एंड मोल्डिंग. So that is all about the fetal condition. Coming to the middle part of the partograph, that is all about the progress of labor. So progress of labor में basically हम क्या क्या देखेंगे, cervix dilation plus descent of the head plus uterine contraction. So first हमारा आता है cervix dilation. You know very well कि बेसिकली सर्विक्स जो है फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर डायलेट करता है. सो इन फर्स्ट स्टेज लेबर में जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो वी विल मेजर इन दैट. कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्स. कैसे करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो समथिंग रिगार्डिंग सर्विक्स डायलेशन. सो सर्विक्स डायलेशन बेसिकली हम एवरी 4 आवर्ली मेजर करते हैं, बट इफ देयर इज सम इंडिकेशन तो हम इससे पहले भी मेजर कर सकते हैं, बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं करते, लाइक एवरी 30 मिनट्स नहीं करते, बिकॉज दिस इज समथिंग कि आपको इसके लिए पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा एंड देन यू गेट टू नो अबाउट द सर्विक्स डायलेशन. So we have latent phase and active phase, you know very well. So up to 5 centimeter of cervix dilation comes under latent phase and from 5 to 10 centimeter comes under the active phase. Then this is very important point that is changed now, that is active phase begins at 5 centimeter of dilation. Earlier it was 4 centimeter dilation, but now according to new recommendation it tells that active phase begin at 5 centimeter dilation and in active phase the cervix dilation should be at least less than 1 centimeter per hour से dilate करना चाहिए. So that is the active phase. ठीक है.
सो हाउ वी आर मेजरिंग, सो लेट्स सपोज आपने 9 AM पे पीवी किया है ना, सो आपने 9 AM पर आपने पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया एंड यू गेट कि यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर डायलेशन है, तो आपने क्या कर दिया, आपने ऐसे डोनेट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कुछ इंडिकेशंस था एंड आपने अगेन 11 AM पे आपने पीवी किया, 11 AM पे पीवी किया एंड यू नो आपने चेक किया कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, सो 6 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, सो दैट इज अराउंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दिस इज 9 AM का पूरा, दिस इज 10 AM, इट इज 11 AM, सो 6 सेंटीमीटर इज समवेयर अराउंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने लेट्स सपोज 1 PM पे किया एंड यू गेट कि अब कितना सर्विक्स डायलेट हो गया है, दैट इज अराउंड 9 सेंटीमीटर हो गया है, सो इट इज 1 PM, सो 9 सेंटीमीटर इज समवेयर अराउंड दैट, सो आपने फिर इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। सो इस तरीके से हम सर्विक्स डायलेशन ऑन द पार्टोग्राफ मेजर करते हैं। देन आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा 2 लाइन, दैट इज अलर्ट लाइन एंड द एक्सेल लाइन। So first of all, the most important questions is the gap between the alert line and the Excel line is 4R. So the gap between the alert line and the Excel line is 4R. And if anything, मतलब कि let's suppose आपने cervix dilation आपने monitor किया and it is somewhere कि ये left side पे आ रहा है. So if the cervix dilation जो line है वो left to alert line है, it means it is normal. Progress जो है वो normal है, कुछ भी आपको एक्सेल लेने की जरूरत नहीं है, इट इज समथिंग दैट इज अकरिंग नॉर्मल। बट लेट्स सपोज आपने सर्विक्स डायलेशन का जो आपने ग्राफिकल रिकॉर्ड किया, इट इज समवेयर कि ये राइट साइड पे आ रहा है, राइट साइड ऑफ अलर्ट लाइन आ रही है, इट मींस यू हैव टू बी अलर्ट, है ना। अगर अलर्ट लाइन के राइट साइड आएगा तो आपको अलर्ट हो जाना है। बट लेट्स सपोज इफ इट इज कम्स राइट टू द एक्सेल लाइन, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो आपको यू हैव टू आपको लेबर को ऑगमेंट करना होगा, या तो आप ऑक्सीटोसिन दो या फिर सिजेरियन सेक्शन की नीड हो सकती है, सो यू हैव टू टेक द एक्शन। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस अलर्ट लाइन और एक्सेल लाइन ऑन द पार्टोग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So that is all about written alert line and the Excel line. The duration is 4 hours. If progress is left of alert line, it is the normal progress, and right of alert line means alert, you have to alert. And let's suppose if the delivery is going in some periphery center, let's suppose PSC है या फिर क्या बोलते हैं जो हमारा सब सेंटर लेवल पे है, देन वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं होगी, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू रेफर टू द हाई सेंटर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आपको अलर्ट हो जाना है। लेट्स सपोज इफ इट इज राइट ऑफ एक्सेल लाइन, then you have to take some action, very very important, so you have to take action so you can augment the labor or prepare for cesarean section. So that is the findings that comes in cervical dilation on the partograph, ठीक है। Coming to the second one, that is the descent of the head. So descent of the head we can find either by per abdominally or either by per vagina. कैसे? So let's suppose पर एब्डोमिनली आप कैसे करेंगे कि लेट्स सपोज आपने पैल्पेट किया, सो यू पुट योर 5 fingers, योर palm ओवर द pubic symphysis, and if you are able to palpate all the head, पूरा का पूरा हेड आप पूरे 5 fingers से पैल्पेट कर पा रहे हो, इट मीन्स कि जो हेड है वो पूरा का पूरा कहाँ है, अबव द पेल्विक ब्रेन, है ना, इंगेज्ड नहीं हुआ है, ठीक है। देन आपने लेट्स सपोज आपने 11 AM पे किया, फिर से अगेन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ 3 fingers आप सिर्फ पैल्पेट कर पा रहे हो, इट मींस इट इज 3/5, अर्लियर इट वाज 5/5, एंड लेट्स सपोज आपने 1 PM पे किया एंड आप यू आर नॉट एबल टू पैल्पेट द हेड, सो दैट इज 0/5, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा एक पर एब्डोमिनल मेथड है, सेकेंड हमारा पर वजाइनल एग्जामिनेशन। सो लेट्स सपोज आपने पीवी किया एंड यू आर एबल टू लोकेट द इस्चियल स्पाइन, सो एट इस्चियल स्पाइन स्टेशन क्या होगा, 0 स्टेशन होगा, एंड लेट्स सपोज इफ द हेड ऑफ द बेबी इज अबव द 3 सेंटीमीटर अबव है, इट मीन्स इट इज -3, सो इट इज -3, है ना। सो -3 एंड लेट्स सपोज आपने 2 घंटे के बाद अगेन पीवी किया एंड यहाँ पे बेबी का जो हेड है वो कहाँ पे है, दैट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन, तो यू विल राइट दैट इज 2/5,
सो लेट्स सपोज हम कैसे इसमें डोनेट करते हैं. सो लेट्स सपोज आपने 8 AM पे पीवी किया एंड यू गेट टू नो कि यहाँ पे बेबी का जो हेड है वो क्या है, -3/5. सो दिस इज समथिंग -3. सो -3/5 ये हो गया. ठीक है, आपने अगेन 11 AM पे पीवी किया एंड आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अब बेबी का जो हेड है वो क्या है, दैट इज एट द ischial स्पाइन पे है. सो दैट इज समथिंग की 0 पे है ना. सो 0 सेंटीमीटर पे है, एट द ischial स्पाइन पे है, तो 0 स्टेशन पे है. लेट्स सपोज आपने 1 PM पे अगेन आपने वो किया. सो इट इज 11, 12, 1 PM. सो 1 PM पे आपने पीवी किया एंड यहाँ पे आपको स्टेशन क्या मिल रहा है, दैट इज 2/5, 2 सेंटीमीटर बिलो द ischial स्पाइन. सो दैट इज 2/5. तो ये हमारा समवेयर यहाँ पे होगा. सो इस तरीके से हम डोनेट करते हैं ऑन द पार्टोग्राफ अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द हेड. ठीक है, सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेड ईदर बाय पर एब्डोमिनली और पर वजाइनली. ठीक है, सो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ द हेड हो गया. कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. सो बेसिकली हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में वी आर मेजरिंग the frequency of the uterine contraction and the intensity and the duration. So three things we are finding: the frequency, intensity and the duration of uterine contraction. And ये जो हमारा एक बॉक्स है, it will tell you about कि 10 minutes में कितना uterine contraction हुआ है. So let's suppose हम uterine contraction कैसे मेजर करेंगे, कैसे फील करेंगे? By putting our palm on the uterus, on the abdomen, है ना. सो ऑन द एब्डोमेन यू विल पुट योर पाम एंड जब यूट्रस, जब जो एब्डोमेन एकदम रिजिड होगा, टेंडर होगा, है ना, सो दैट इज कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, सो आपने अपना पाम ऑन द यूट्रस रखा, ऑन द एब्डोमेन रखा एंड लेट्स सपोज 10 मिनट्स में 3 कॉन्ट्रैक्शंस है. 10 मिनट्स में 3 कॉन्ट्रैक्शंस है, 3 कॉन्ट्रैक्शंस है. ठीक है, सो हम कितना करेंगे, 3 बॉक्स हम फिल करेंगे एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज फॉर 20 मिनट्स. सो जो एक कॉन्ट्रैक्शन था वो कितने सेकंड का था, 20 सेकंड का था. सो इट इज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम कैसे डोनेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट. ठीक है, लेट्स सपोज आपने नेक्स्ट टाइम अगले हाफ एन आवर बाद हमने फिर से चेक किया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यू गेट टू नो कि अब जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है 10 मिनट्स में 4 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन है, दैट इज अराउंड 35 सेकंड का है. सो 35 सेकंड का है, देन आपको कैसे डोनेट करना होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन. ठीक है, लेट्स सपोज आपने नेक्स्ट टाइम आपने जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मेजर किया, इट इज अगेन कि 4 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट इंटेंसिटी क्या है, दैट इज 70 सेकंड के लिए है. 70 सेकंड के लिए है, इट मींस आप इसको कैसे फिल करोगे, पूरा फिल करोगे, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ दैट हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हम ऑन द पार्टोग्राफ हम फिल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द राइटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एवरी 30 मिनट बाय प्लेसिंग हैंड ऑन द यूटरस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट एंड each box represent 1 contraction. so frequency duration is less than 20 सेकेंड होगा तो डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 20 to 40 सेकेंड का होगा तो हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इफ इट इज मोर देन 40 सेकेंड देन हम पूरे स्क्वायर को फिल कर देंगे. ठीक है, अदर देन दैट लेट्स सपोज इफ यू आर गिविंग सम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं, सो यू हैव टू राइट देयर. and other than oxytocin अगर आप कुछ drugs like कुछ antibiotics and all दे रहे हैं, so you have to write there. and if the patient is on IV fluids, so everything you have to write there. ठीक है, so that is about the oxytocin and drugs and other IV fluids. So that is all about the progress of labor. So in the progress of labor we are writing cervix dilation, descent of the head, uterine contraction and if some medication is using, so you have to write that also. ठीक है, so these we have read about the fetal condition, the progress of labor. Coming to the maternal condition. So maternal condition में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पल्स देखेंगे. So पल्स सेम जैसे हमने fetal heart rate मेजर किया, ऐसे ही हम पल्स भी मेजर करेंगे. So let's suppose मदर का पल्स कितना होना चाहिए, that is 60 to 100 के बीच में होना चाहिए, 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए. So let's suppose आपने 9 AM पे किया मदर का हार्ट रेट चेक एंड इट इज समवेयर की 80 है, तो आपने 80 कर दिया, है ना, डॉट से डोनेट करेंगे, 80 कर दिया. अगेन आपने 8:30 पे किया, इट इज समवेयर की 85 है, सो आपने 85 कर दिया. ठीक है, देन अगेन आपने 9 AM पे किया, इट इज 70 है. सो इस तरीके से आप डॉट डॉट से आप मार्किंग करेंगे ऑन द पार्टोग्राफ. देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज बीपी. सो हार्ट रेट, पल्स रेट हम एवरी 30 मिनट्स पे करते हैं
बीपी हम एवरी 4 आवर्ली करते हैं और एज पर इंडिकेशन इट इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट कि आप एवरी 4 आवर्ली पे ही करेंगे. इट इज कि अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा और डिले भी कर सकते हैं ना. सो दैट इज समथिंग कि एवरी 4 आवर्ली यू हैव टू डू, है ना. सो ऐसे पार्टोग्राफ में है, ठीक है. सो एवरी 4 आवर्ली है. सो लाइक बीपी कैसे करेंगे. सो लेट्स सपोज बीपी जो आया वो 110/70 आया. सो 110 इट इज समवेयर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और 110/70 यहाँ पे है. सो हम इसको कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस एरो हम पार्टोग्राफ में इसको मार्किंग करेंगे. सो ऐसे एरो से. लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम बीपी आया है 135/80. सो 135/80, सो 135 हमारा समवेयर यहाँ होगा और 80 हमारा ये है. सो हम कैसे मेजर करेंगे, दिस इज द एरो. सो ये हम इस तरीके से बीपी मेजर करते हैं. नेक्स्ट हमारा है अबाउट द यूरिन, है ना. सो मैटरनल पल्स, मैटरनल बीपी एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर भी हम एवरी 4 आवर्ली मेजर करते हैं. सो टेम्परेचर, बीपी एंड pulse rate, and next one is the urine. So we will write the volume, total volume, the protein and the acetone. So this is all about the maternal condition, pulse, BP, temperature and the urine ke regarding like volume, acetone and the protein. Okay, so this is the partograph. That is something very very important. The most important part you have to remember, that is the active phase begin at 5 centimeter dilation and alert line about the action line, because this is something कि यहाँ से student confuse हो जाते हैं कि क्या है. So that you have to remember very very well. Okay, so I think the partograph topic is clear for you people. Thank you so much. All the best.